Hello students, a very warm welcome to each and every viewer who is going to see this video. Students, I am trying to complete the chapter first, that is crop production and management, in this video only. So it can take more time to complete it. So see the video patiently, right? So let's start with the next step of agricultural practices, that is harvesting. So start with the harvesting. The cutting and gathering of matured crop is called harvesting. जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है उनको कट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 or 4 months for a food crop to mature. Lush green wheat fields and paddy fields turn to golden yellow at the end of this period. So this change in color from green to golden is due to the maturity of crop or ripening of crop. Once the crop has matured, then it is ready for cutting and gathering, and we do harvesting, right? इसी समय farmers क्या करते हैं? Harvesting करते हैं when the crop is get matured, right? Now there are various methods or harvesting. The farmers can do harvesting manually with the help of sickle and by machine, and the machine is known as harvester, right? So manual harvesting means the crops like wheat or rice are cut close to the ground by hand using a cutting tool called sickle. ठीक है? This is called manual harvesting. In large fields, wheat and paddy crops are cut by a motorized machine called harvester. So harvester क्या है? एक motorized machine है, ठीक है? और ये large field पे यूज होता है. और manually हम किसको यूज करते हैं? सिकल को यूज करते हैं, right? So हमने ठीक है हार्वेस्टिंग कर दी. जो फार्मर्स उन्होंने कट कर दिया क्रॉप को. अब क्रॉप को कट करके ही सारा काम कंप्लीट नहीं होता है. दे हैव डू द फर्दर प्रोसेस, ठीक है? तो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स. जो क्रॉप प्लांट जिनको हम कट कर चुके हैं उसमें उसे बीट करके उनसे ग्रेन को बाहर निकालना, दैट प्रोसेस नोन एज थ्रेशिंग, ठीक है? और जो ग्रेन्स जिनके अंदर कवर रहते हैं, दैट आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन is known as chaff. Outer covering of grain comes out after threshing is called chaff. जो बाहर का एरिया जो होता है उनका बाहर का जो कवर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? chaff कहते हैं, ठीक है? सो ये बात ध्यान रखिएगा that in the traditional method of threshing, ठीक है, पुराने टाइम पे क्या करते थे? The harvested crop is spread on the ground. ग्राउंड पे अच्छे से फैला दिया in a small area. And various cattle like bullocks, buffaloes and camels are made to walk over it again and again in a circle. The cattle's feet crush the harvested crop plants, due to which the chaff breaks up and the grain comes out. During threshing, the leaves and stems of the crop plants are converted into very small pieces called hay. ठीक है? ये वाला. Then during threshing, the leaves and stems of the crops are converted into very small pieces, and these pieces are known as hay. Please remember, it is used as a fodder for animals. बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, ठीक है? समझ में आई ये वाली बात? तो थ्रेशिंग अगर वो करेंगे तो या तो उन्होंने बुलक्स के थ्रू किया था, ठीक है, कैटल के थ्रू किया था. इफ इट इज डन बाय मशीन, then the machine is known as thresher, ठीक है? the motorized machine used for threshing is known as thresher, ठीक है? तो हमने फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी हार्वेस्टर से और फिर करी थ्रेशिंग थ्रेशर से, ठीक है? दोनों ही हम मैनुअली भी कर सकते हैं, दोनों हम मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है? लार्ज एरिया पे वी आर यूजिंग हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग के अंदर शेफ हो गया आपका और हे हो गया, ठीक है? अब इनको अलग अलग भी करना है. दोनों अलग तो हो गए, लेकिन हमें ग्रेन्स को उसमें से बाहर निकालना है. तो द प्रोसेस विच इज यूज्ड इज विनोइंग.
प्लीज रिमेंबर, ढंग से समझना इसको, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शेफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। ये आपने 7th क्लास में ही पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपने मेथड पढ़े थे। दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग brings out grains from the cut and dried crop plants, but this grain is mixed with chaff, that is the outer inedible covering of the grain, and hay, and has to be cleaned by separating from chaff and hay before it can be used, and this is done by the process that is known as winnowing। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात आपको। Now when the grain mix with chaff and hay, हमें ये तो पता चले कि विनोइंग हम करते कैसे हैं, ठीक है, ये आपने 7th में पढ़ा है, बट फिर भी प्लीज लिसन इट केयरफुली। When the grain mixed with chaff and hay is made to fall from a height in blowing wind, the grain being heavy falls straight to the ground, whereas the chaff and hay being much lighter are carried some distance away by the wind। इससे क्या होगा, जो डायरेक्ट गिर गया ग्राउंड के ऊपर ग्रेन गिर गए, और जो शेफ और हे था वो लाइटर होने की वजह से, विंड की वजह से वो थोड़े डिस्टेंस के ऊपर कलेक्ट हुए। तो इन दिस वे वी आर एबल टू सेपरेट शेफ एंड हे फ्रॉम द ग्रेन्स, एंड द प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग, राइट। अब विनोइंग हो गया आपका। अब एक और आपके इम्प्लीमेंट है, दैट इज कंबाइन। ठीक है, कंबाइन इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, यानी कि इस मशीन में हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम एक ही मशीन से करते हैं। सो अ कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल wheat, in the fields, threshes it and separates the chaff from grain in one operation। यानी कि एक साथ ही वो हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेशर वाला काम भी करता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज तो ये है कि हमें विनोइंग की जरूरत नहीं है भाई, जब सारे काम एक साथ हो रहे हैं और शेफ अपने आप ही अलग हो रहा है तो हमें विनोइंग की क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ विनोइंग, दिस इज द एडवांटेज। बट देयर इज अ डिसएडवांटेज दैट इट रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ हे। हे कहाँ पे काम में आ रहा था, फॉडर में काम में आ रहा था, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अब व्हाई इज इट हैपन, प्लीज लिसन इट केयरफुली। द grain is clean and can be directly filled in gunny bags, and hay which is not produced. Now why is hay not produced? Because the combines cut only the upper part of the standing crop and not from the near the ground। नीचे से नहीं काटता, ऊपर ऊपर से हार्वेस्टिंग के थ्रू काट देता है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए हे प्रोड्यूस नहीं होता। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइन। नाउ आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिकल। मैनुअल हार्वेस्टिंग किससे हम करते हैं, दिस इज कंबाइन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ठीक है, नाउ द स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग ऊपर का क्रॉप प्लांट कट करने के बाद जो रिमेन बच जाता है फील्ड के अंदर, आर समटाइम्स बर्न्ड बाय द फार्मर्स। कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। द बर्निंग ऑफ स्टब्स इज हार्मफुल ड्यू टू 2 रीजंस। ठीक है, अब वो रीजन क्या क्या है, क्यों हार्मफुल है, क्योंकि पहली चीज तो द बर्निंग ऑफ स्टब्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। कई बार देखते हैं ना अपन कि होली के टाइम पे या जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। वो पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि उस समय कई फार्मर्स क्या करते हैं, इन सारे रिमेन्स को बर्न आउट कर देते हैं, और बर्निंग से क्या होगा, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज इज द बर्निंग ऑफ स्टब्स इन द फील्ड में कॉज एक्सीडेंटल फायर टू द हार्वेस्टेड क्रॉप लाइंग इन द फील्ड्स एंड डैमेज इट। भाई एक जगह आपने बर्निंग करी, तो अगर पास में आपने हार्वेस्टेड क्रॉप रखी हुई है तो आग तो कोई भी कहीं पे भी जा सकती है ना, तो एक्सीडेंटल फायर भी कॉज हो सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत रेयर कंडीशन में बर्निंग करें, वरना बर्निंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, भाई जब क्रॉप मेच्योर होती है और रेडी होती है हार्वेस्टिंग के लिए, और जब फील्ड्स गोल्डन येलो में कन्वर्ट हो जाता है आपका फील्ड, जो भी आपके प्लांट्स हैं, तो द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय। क्योंकि भाई जो उनकी पूरे साल की मेहनत होती है वो मेहनत अब
कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, अब उसका रिजल्ट आने का टाइम है, तो दे बिकम वेरी हैप्पी. सो they become very happy, and the period of harvest is of great joy and happiness in all the parts of the India. Men and women celebrate the harvest season in the form of festivals. The special festivals in India associated with the harvest seasons, and these are Pongal, Baisakhi, Holi, Nabanya, Bihu. ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग जगह बनाए जाते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन द पार्ट ऑफ द इंडिया जहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. पोंगल, ये इसका रीजन आपको लिखना है. बैसाखी कहाँ सेलिब्रेट की जाती है, होली कहाँ सेलिब्रेट की जाती है. यू हैव टू मेंशन द एरियाज, मेंशन कर दीजिए इंडिया के अंदर, या फिर पर्टिकुलर जहां पे भी जो उसका स्टेट है उस स्टेट को मेंशन कीजिए कि कहाँ पे ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. नबन्या, बिहू, आपको जो ये 5 फेस्टिवल्स के मैंने नेम लिखे हैं उन सब के आपको मेंशन करने हैं नेम. ठीक है, एरियाज के.